Hello students, welcome to my YouTube channel Study Zone Passion for Learning. I hope you all are learning well. So, we have completed concept of economics in the previous lecture and today I will discuss significance of statistics in economics. This is part 2 of chapter 1 of statistics, that is concept of economics and significance of statistics in economics. In this module, we will discuss the meaning of statistics, statistics in plural sense and statistics in singular sense. Let us now understand the meaning of statistics. Statistics is something like a store of quantitative information. Statistics quantitative information का store है. That means all the quantitative informations are included in statistics. So if we take statistics in other way, then statistics is the quantitative information of facts and findings. Now from where we can take these quantitative information? Means there is a system or method or technique where quantitative information is collected. The statistic information may be raw information also. यानी कि raw information जो initial information होती है, it needs to be classified, tabulated or it needs to be systematically presented. So let I explain this with the help of example. Now, if I want to know the status of unemployment in India, then what we will do? We find out that a country's unemployment. Suppose it is 36%. तो यह जो 36% जो अनएम्प्लॉयमेंट का निकल कर आया है वो किस में से निकल कर आया है? वो किस में था? वो नंबर्स में था. कैसे फाइंड आउट किया? रॉ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके फाइंड आउट किया. एंड हाउ वी कैलकुलेट दैट रॉ इन्फॉर्मेशन? इन नंबर्स ओनली. तो जब हमने फाइंड आउट किया कि हमारी कंट्री में इतने परसेंटेज अनएम्प्लॉयमेंट है, वो किस में थी? नंबर्स में थी. उसमें से भी अगर आप देखो तो आपने यह अनएम्प्लॉयमेंट की डेटा को फाइंड आउट करने के लिए पहले ये देखा कि कितने लोग कंट्री में एम्प्लॉयड हैं, वो भी किस में है? नंबर्स में है. और उस नंबर्स की हेल्प से हमने परसेंटेज डिराइव कर लिया. तो हमने डेटा का क्या किया? यहाँ पर हमने डेटा का क्वांटिफिकेशन किया. सो डैट मीन्स स्टैटिस्टिक्स में हमेशा नंबर्स को इंक्लूड किया जाता है. क्वालिटीज़ का स्टैटिस्टिक्स में कोई भी रोल नहीं होता है. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स. व्हेन इट कम्स टू द स्टैटिस्टिक्स, इट इज़ मेथड ऑफ कलेक्टिंग द डेटा. So whenever I'm talking about statistics, I'm referring to some data and methods of collecting the data. Now, why do we use it? Because we want to understand how the economy is performing, to understand the economic problem and to find out the solution for that. Now, with a view of such a vastness of subject matter, statistics is defined both in singular sense and plural sense. So it becomes important for us to understand these two distinct senses so as to understand what exactly statistics stands for. Let I explain you statistics in plural sense. Statistics refers to information in terms of numbers or numerical data. तो जब हम statistics को plural sense में लेते हैं तो statistics क्या है? Information in terms of numbers और numerical data. यानी कि जो भी नंबर्स में डेटा कलेक्ट होते हैं वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं. सो इन प्लूरल सेंस इट इंक्लूड्स एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स. दैट मीन्स कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने नहीं, और उसी से हम पॉवर्टी स्टेटस भी फाइंड आउट कर सकते हैं. देन इट इंक्लूड पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, मतलब कितनी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में. देन वी टॉक अबाउट द पब्लिक एक्सपेंडिचर, दैट इज़ ऑल्सो इन स्टैटिस्टिक्स. गवर्नमेंट किस सेक्टर में कितना एक्सपेंडिचर कर रही है. सो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस, और वी कैन से दैट स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन. However, any information which are in numerical way is not statistics. मतलब कोई भी या सारी numerical information statistics नहीं होती है. अब कौन सी information statistics नहीं हो सकती है? For this, I will take an example. रमेश को सपोज ₹100
पॉकेट मनी मिलती है। सो दिस इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के बारे में बता रहा है, सिर्फ रमेश के बारे में बता रहा है। वो स्टैटिस्टिक्स कब होगी, जब हम कह सकेंगे कि सपोज़ एक अनदर एग्जाम्पल आई विल टेक, क्लास 11th के सारे बच्चों की एवरेज पॉकेट मनी जो है वो 2000 रुपीज़ है, तो वहाँ पर हम लोग एग्रीगेशन को इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पर हम एवरेज की बात कर रहे हैं। तो कोई भी सिंगुलर इंफॉर्मेशन, सिंगुलर न्यूमेरिकल डेटा अगर हमारे पास गिवन होता है तो उसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते हैं, क्योंकि हम सिंगुलर के वे में कभी भी स्टैटिस्टिक्स में डेटा इंक्लूड नहीं करते हैं, हम एग्रीगेट की बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं। The following table shows a set of data which is statistics and another set which is not statistics. First of all, a cow has 4 legs. It cannot be statistics. But the average height of the 26 plus male people in India is 6 feet compared to 5 feet in Nepal is statistics. Why it is? यानी कि जो एवरेज हाइट है हमारी कंट्री में 26 एज ग्रुप के अबव मेल्स की वो 6 फीट है, एज़ कम्पेयर टू नेपाल की जहाँ पर सिर्फ 5 फीट हाइट है। तो इसे हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेशन इंक्लूड हो गया है, एवरेज की बात हुई है, एज वेल एज हमने कंपेयर भी करा है। एज वी टॉक अर्लियर कि जब भी हम एवरेज के साथ कंपैरिजन की बात करते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, बट सिंगुलर अगर डेटा है देन इट विल नॉट बी अ स्टैटिस्टिक्स। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज राम हैज़ 200 rupees in his pocket. This is also not a statistics. A young lady was run over by a speeding truck at 100 km/h. This is also not a statistics, but birth rate in India is 18 per 1000 compared to 8 per 1000 in USA. This is statistics because here we talk about two countries, India and USA, and compare about the birth rate in these data. Then over the past 10 years, India has won 60 test matches in cricket and lost 50. तो यहाँ पर भी हम कंपेयर कर रहे हैं लास्ट 10 years के बारे में, ठीक है, उनके क्रिकेट मैचेस के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी सिंगुलर पर्सन की जब भी हम बात कर रहे हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी। स्टैटिस्टिक्स कब होगा, जब हम इसमें कंपेयर करेंगे एग्रीगेशन को साथ में इंक्लूड करके, देन इट विल कॉल्ड एज अ स्टैटिस्टिकल डेटा। Now we will discuss some authors' definition. So in the plural sense, how statistics is defined by different authors. According to Professor Bowley, statistics are numerical statements of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. That means स्टैटिस्टिक्स एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है किसी भी फैक्ट्स का जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। डैट मीन्स वी टॉक अबाउट द प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। जब हम किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी में जब हम फाइंड आउट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब जो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट निकल कर आता है फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स का, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू यूल एंड केंडाल, स्टैटिस्टिक्स मीन्स, बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन quantitative data affected to a marked extent by multiplicity of causes. इसके अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स एक क्वांटिटेटिव डेटा है affected by marked extent, यानी कि एक मार्क एक्सटेंट तब इफेक्ट होता है, क्यों इफेक्ट होता है, बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। सो यानी कि स्टैटिस्टिकल डाटा पर किसी एक रीज़न का, किसी चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा इफेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस और अ प्लूरल नाउन, इट हैज़ वेरियस फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स in terms of numerical data are: first, aggregate of facts. A single number does not constitute statistics, as I explained this earlier in the example also, because from that we cannot draw any conclusion. केवल एग्रीगेट नंबर से ही हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि क्लास 11th में 200 स्टूडेंट्स हैं, सो दिस इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक्स, बट व्हेन वी से दैट 80 स्टूडेंट्स आर इन आर्ट्स स्ट्रीम,
50 students are in commerce stream and 70 students are in science stream, then it would be a statistics, because here we can compare the data with each other and aggregation is involved here. But one thing should be noted down here, students, that all statistics are expressed in numbers, but all numbers are not statistics, because that number must need the aggregation. So this is the first feature of aggregate of facts. Now the next feature is numerically expressed. Statistics are always expressed in numerically terms. Qualitative terms such like big, small, rich, poor can never be statistics. If I say Sita is tall and Geeta is short, then it is not a statistics. But if I say height of Sita is 5 feet and height of Geeta is 6 feet, then it is a statistics. Next one is affected by multiplicity of causes. Statistics are not affected by any single factor but are influenced by many factors. जैसा कि मैंने कहा, हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन हो गया है, जो प्राइस है वो 30% इंक्रीज़ हो गई है। तो 30% जो इन्फ्लेशन हुआ है वो किसी एक की वजह से हुआ था, एक रीज़न की वजह से नहीं हुआ था, उसके बहुत सारे रीज़न थे। प्राइस क्यों राइज़ हुई? क्योंकि सप्लाई कम थी। प्राइस इसलिए भी राइज़ होती है क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी, या फिर मे बी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पा रही थी, वेजेस लोगों की बढ़ गई थी, तो उनकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, तो इसीलिए प्राइजेस को राइज करना पड़ा। दैट्स वाई स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। द फोर्थ फीचर इज रीजनेबल एक्यूरेसी। अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन व्यू while collecting statistical data. जब हम statistical data कलेक्ट करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो रीजनेबली एक्यूरेट होना चाहिए। What do you mean by reasonably? Means reasons के साथ प्रॉपर एक्यूरेशन उसमें होना चाहिए। एंड दिस एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है, व्हाट आर इट्स नेचर, साइज एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। क्योंकि अगर हमारा डेटा एक्यूरेट होगा तभी कंक्लूजन भी अप्रोप्रिएट होंगे। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। मतलब कि जो न्यूमेरिकल्स है वो अगर सिंगल है और उसमें किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है तो वहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर सकते। सो सच न्यूमेरिकल विल नॉट बी कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स as they are not mutually related and comparable. जब तक न्यूमेरिकल में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है वो न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती। लेट आई explain this with an example. If it is stated that Ram is 40 years old, Mohan is 5 feet tall, Sohan has 60 kg of weight, then these numbers will not be called statistics as they are not mutually related nor subject to comparison. क्योंकि राम की यहाँ पर एज बता रहे हैं, मोहन की हाइट बता रहे हैं, सोहन की वेट की बात हो रही है, तीनों की एक यूनिफॉर्मिटी कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है, हम कंपेयर नहीं कर पा रहे, इसलिए हम इसको स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। दे आर नॉट म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल ऑल्सो। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। स्टैटिस्टिक्स शुड ऑलवेज बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। अब सिस्टमेटिक मैनर में कैसे कलेक्ट होने चाहिए? स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करने से पहले एक प्लानिंग की जाती है। पहले से अगर हमने प्लानिंग की होगी, हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखे होंगे, तो हम हैफेजेड मैनर में नहीं, यानी जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे। सो एज अ रिजल्ट आवर डेटा विल बी एक्यूरेट, आवर कंक्लूजन विल ऑल्सो बी एक्यूरेट और इट विल एप्रोप्रिएट ऑल्सो। So these are the features of statistics in plural sense. Students, apart from it, more can be there like predetermined objectives, enumerated or estimated. These all can be characteristics of statistics in the plural sense. So this should be very important to note it down that statistics in plural sense always include characteristics. उसमें characteristics include होती है। Now we move to the next topic of the lecture, that is statistics as a singular sense or statistics as a singular noun. Statistics means science of statistics or statistical method.
सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है, साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, और जिसमें हम लोग टेक्निक्स और मेथड्स की भी बात करते हैं। अब यहाँ पर टेक्निक्स क्या है, विच रिलेट्स टू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिकल मेथड और टेक्निक आती हैं, वेयरएज प्लूरल सेंस में हम हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस डिस्कस अबाउट सम ऑथर्स डेफिनेशन। According to Croxton and Cordon, statistics may be defined as the collection, presentation, analysis, and interpretation of numerical data. According to Seligman, statistics is the science which deals with the methods of collecting, classifying, presenting, comparing, and interpreting numerical data collected to throw some light on any sphere of inquiry. Meaning is already clear here because यहाँ पर statistical methods की बात हो रही है, collection, organization, presentation, ये सारे statistical method हैं जिनका discussion हो रहा है. Studying statistics as a singular noun implies the knowledge of various stages of statistical study. These stages are: Stage 1, collection of data; Stage 2, organization of data; Stage 3, presentation of data; Stage 4, analysis of data; and Stage 5, interpretation of data. Now we discussed these stages of statistics as per singular noun one by one. Look at the table given here. Here all the stages given from 1 to 5th. So here all these stages come in a sequence. Look at here 1 to 5. They all are in sequence. ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्टेज 5 को पहले कर दें और स्टेज 4 को बाद में कर दें. पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है. तो फोरमोस्ट ड्यूटी क्या होती है? डेटा कलेक्शन. फिर उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रॉपर मैनर में टेलीबास के थ्रू. देन उसको प्रेजेंट किया जाता है टेबल्स, ग्राफ, डायग्राम बनाकर. फिर उसको एनालाइज किया जाता है. एनालाइज करने के लिए उसकी एवरेज, परसेंटेज निकाली जाती है. हम लोग फाइंड आउट करते हैं और उसको कोरिलेशन कोरिलेशन से फाइंड आउट करते हैं और लास्ट में हम उसको इंटरप्रेट करते हैं. इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इंटरप्रेट करने के लिए हमें इन्फ्रेंसेस और कंक्लूजन ड्रॉन करने पड़ते हैं. तो जो भी एनालिसिस हमने पहले से कर रखी है उसी की बेसिस पे हम कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं. तो इन 5 स्टेजेस में कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स इंक्लूड होते हैं वो भी हम देख लेते हैं. So each stage of the statistical study involves the use of certain standard techniques or methods, and these techniques or methods are called statistical tools. ये सारे के सारे डिटेल में हम इसी स्टैटिस्टिक्स बुक में पढ़ने वाले हैं, इंडिविजुअल चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. ओके, लाइक statistical tools used for the collection of data are sample and census technique. Array of data and telebar are the standard technique used for the organization of data. Table, graphs and diagrams are the well-known statistical tool for the presentation of data. Average and percentages are commonly used techniques for the analysis of data, and interpretation of data is often done in terms of magnitude of averages, percentages or coefficient of correlation or regression. So what are statistical tool here? क्या होता है स्टैटिस्टिकल टूल का मतलब? These refers to the methods or technique used for the collection, organization, presentation of data as well as for the analysis and interpretation of data. जो भी मेथड हम इन सारे स्टेजेस को करने के लिए यूज़ करते हैं इसको हम स्टैटिस्टिकल टूल कहते हैं. तो यही हमने अभी स्टैटिस्टिकल टूल में देखा कि कौन कौन से वेज को हम चूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी करने के लिए. सो दिस इज़ all about in the lecture what is statistics and statistics in singular and plural sense. Thank you.